Hello student, welcome back to my channel. So today we'll discuss here about the next topic of chapter motion in a straight line, which is in front of you. These are the topics which I will discuss today in this lecture with you. So first topic is point object. When we focus here about the concept of point object means that during the motion, the object which has small size as compared to the distance traveled by the object is called पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट हम कब कंसीडर करेंगे? अगर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो कवर्ड डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू दियर साइज बहुत लार्ज है। पॉइंट क्लियर? जैसे मेरे पास मान लो एक कार है, कार का साइज आपको पता है क्या होता है, ठीक है, 2 मीटर करीब या 3 मीटर। तो कार का जो लेंथ है आपका 2-3 मीटर की लेंथ है और उसने डिस्टेंस कवर करी 10,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार एज कंपेयर टू देयर साइज इज वेरी लार्ज, so that time that car is considered as point object. Point is clear, student? So when we write the definition here about the point object it is considered as the object which has small size as compared to the distance covered by it during motion. Point is clear, student? So this is called our point object. When we write the example of point object, we can say that car considered as point object if it covers very large distances during its motion. So this is the concept of point object. After then, when we talk here about the next point, after the point object we can discuss here about the motion in a straight line. Clear? Here we will discuss about the motion in a straight line. So जब किसी straight line में कोई point object जब किसी straight line में motion कर रहा है, it means that उसका जो motion है वो क्या है, one dimensional है। क्योंकि यहाँ पे जब motion in a straight line के बारे में discuss करेंगे तो it means that the object is moving in one dimensional motion, either it is along the x axis or y axis or z axis, but here we will discuss about horizontal plane, so it means that is along the x axis. So here we will discuss about the motion of a straight line, motion in a straight line when the point object, under the consideration of point object we can discuss here about the motion in a straight line, because that time the distance covered by the object is very large as compared to their size. That's why we can consider here the given object is our point object. When the point object is moving in a straight line, its motion is one dimensional. Point is clear? And at any instant of time the object has definite position. At any instant of time the object has definite position with respect to the time. तो different टाइम में से किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम को अगर हम ले लें, किसी भी टाइम को 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 किलोमीटर, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 7 आवर, तो उस गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपके पास ऑब्जेक्ट की एक अपनी डेफिनेट पोजीशन होगी और ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, वन डायमेंशनल होगा। तो उस टाइप के जो मोशन को हम क्या बोलेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन
अब यहाँ पे अगर आप इमेजिन करिए, एक स्ट्रेट लाइन को हम इमेजिन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का मोशन क्या है, लीनियर मोशन है यानी स्ट्रेट लाइन मोशन है, और ओ कोई उसका पॉइंट है जिसको हम इनिशियल पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जहां से ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम है यहाँ पे। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड थी वो क्या है आपके पास 0 किलोमीटर है, इसको ओरिजिन कंसीडर किया है, तो ठीक है यहाँ पे 0 किलोमीटर भी हम लिख सकते हैं, इसको आप स्मॉल दिखा दीजिए और इसको हम ओरिजिन कंसीडर कर देंगे o, या आप इसे ऐसे दिखा दें। अब ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, वन डायमेंशनल मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका जो मोशन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ओ से ऑब्जेक्ट की लोकेशन ए आएगी, फिर हो सकता है उसकी लोकेशन बी आ जाए, फिर उसके बाद कोई लोकेशन सी आई होगी, फिर कोई लोकेशन डी आई होगी। अगर आप इसके टाइम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सपोज टी इज इक्वल टू 1 आवर में ऑब्जेक्ट ए डिस्टेंस कवर किया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज्यादा है तो इसको हम कंसीडर कर दे रहे हैं कि ये 2 आवर्स का गैप है, तो 2 आवर्स में ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया होगा, इसके बाद जो 2 आवर्स लगे होंगे। ठीक है, या आप ऐसे ही कंसीडर कर लिए 1 आवर में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, 2 आवर में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, 3 आवर में ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या होगी, आपके पास ऑब्जेक्ट किसी एक डेफिनेट पोजीशन सी पे होगा। ठीक है, T1 T2 T1 इसको कंसीडर कर लेते हैं, T2 इसको कंसीडर कर लेते हैं, T3 इसे कंसीडर कर लेते हैं, T4 इसे कंसीडर कर लेते हैं, here also T5 which is in 4 hour. So A, B, C, D are the position in different instant of time. Either it is 0 hour, means 0 hour means car is starting from point O. After 1 hour its position is A, after 2 hour its position is B, after 3 hour C, after 4 hour D. So A, B, C, D we have definite position. Point is clear? So such type of motion is called motion in a straight line. And if we think about some point about the motion in a straight line, means origin होगा आपके पास, इस पे क्या ओरिजिन होता है, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, उसके अगर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है तो क्या है पॉइंट इसके, तो इसके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। सो फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो स्टूडेंट, in the sense of motion in a straight line, here we will discuss about some important point which is regarding the origin and the positive and negative location, means the distance, कहाँ पे पॉजिटिव होगी डिस्टेंस, कहाँ पे नेगेटिव होगी। तो पहले तो हम पहला पॉइंट ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एक आपको डायग्राम बनाया है, इसमें ए बी सी डी, यहाँ पे मैंने जो ओ पॉइंट है जिसको मैं ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूँ उसको मैंने सेंटर में ले लिया समझाने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपके पास मोशन में है तो ये जो ओरिजिन है, मेरा जो इनिशियल डायग्राम बनाया था उसमें स्टार्टिंग में था, अब यहाँ पे आपके पास मैंने ओरिजिन को कहाँ कंसीडर कर दिया है, सेंटर में। तो ये ओरिजिन कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है, तो आप ये लिख सकते हैं। और जो एक्स एक्सिस आपको दिख रही होगी, अलोंग एक्स एक्सिस है, अगर आप एक्स वाई जेड के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये अलोंग एक्स एक्सिस है, इसको यहाँ पे मैंने टाइम एक्सिस कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो ये टाइम एक्सिस यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, तो टाइम एक्सिस में ओरिजिन कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है द origin in the time axis can be shifted at any point on the time axis। तो टाइम एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे ये ओरिजिन शिफ्ट हो सकता है। आप इस ओरिजिन को जब आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन है यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट इज क्लियर? तो इसके रिस्पेक्ट में आप अपनी डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। मतलब कहने का मेरा मीनिंग ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन में, तो हो सकता है मैं t इक्वल टू 1 आवर को यानी 11 o'clock जैसे उसका मोशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉच, तो मैं उसका जो मोशन है उसको मेजर करने के लिए या तो मैं t इक्वल टू जब मेरे 7 AM का टाइम होगा मैं तब से उसका मोशन मेजर करूं, तो 7 AM मेरा यहाँ पे ओरिजिन होगा। अब कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है कि मेरा ओरिजिन जो है, मैंने जब टाइम मेजर करना स्टार्ट किया तो मैं 7 AM से ना स्टार्ट करके उसको 10 AM से स्टार्ट करूं, तो उस केस में जो 7 AM से 3 आवर मोर है 10 AM, ठीक है, 3 घंटे ज्यादा है, तो उस 10 AM को मैंने ओरिजिन कंसीडर किया हुआ है। तो टाइम एक्सिस पे जो मेरा टाइम है t इज इक्वल टू 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 जो टाइम क्लॉक पे टाइम है उसमें से किसी भी एक रैंडम टाइम को मैं यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर कर सकता हूँ। तो इसलिए वो सारे के सारे जो टाइम है वो आपके पास टाइम एक्सिस पे होंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 7 AM का टाइम है, ये 8 AM का टाइम है,
ये 9 AM का टाइम है, वो पॉइंट पे ये 10 AM का टाइम है और ये 11 AM का टाइम है, तो इनमें से किसी भी टाइम को या किसी भी पॉइंट को मैं एज अ ओरिजिन कंसीडर कर सकता हूं। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि ओरिजिन कैन बी शिफ्टेड एट एनी पॉइंट ऑन द टाइम एक्सिस। सेकंड पॉइंट ये था कि जब हमने ओरिजिन कंसीडर कर लिया तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड के जितने भी टाइम होंगे फिर वो सब के सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड के टाइम जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं राइट साइड ऑफ द origin time has taken positive and left side it has taken as नेगेटिव। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को नेगेटिव और राइट हैंड साइड वाले को पॉजिटिव टाइम दिया जाता है। अब इसमें नेगेटिव टाइम का मीनिंग क्या हुआ कि जब नेगेटिव टाइम यहाँ ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि t इज इक्वल टू 0 हमारा ओरिजिन है वो पॉइंट पे, t इज इक्वल टू 0 आर पे। अब इससे पहले -1 आर का मतलब क्या है, वॉच में -1 आर थोड़ी चलेगा। तो इसका मतलब अगर हम मान लीजिए यहाँ पे हम ओरिजिन 9 AM को ले रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट जो है V पॉइंट पे 8 AM पे था, इसका मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन या पोजीशन थी 8 AM पर, वो क्या है, इस ओरिजिन से पहले ही वहां पहुंच गया है, 1 आवर पहले इस बी पोजीशन पर वो ऑब्जेक्ट पहुंच गया है। ऐसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ओरिजिन हमने इसको कंसीडर किया हुआ है वो पॉइंट को, और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन ए पर -2 आवर शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन 9 AM पे होती, तो 9 AM से ठीक 2 आवर पहले, 9 AM से 2 आवर पहले, इट मींस दैट 7 AM पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, आपके पास ए पॉइंट है। तो यहाँ पे आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, नेगेटिव साइन मींस दैट द object is reached at that point before that time of the origin से इतने टाइम पहले आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक गिवन लोकेशन पर पहुंच गया। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? सो इसका मीनिंग ये था। अब उसके बाद क्या है, तो इसके बाद अब आप देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या है कि हम किसी भी दो पॉइंटों के बीच में अगर हम टाइम इंटरवल को लेंगे, टाइम इंटरवल मतलब अगर आप बी और ओ के बीच में टाइम इंटरवल देख रहे हो कि बी से ओ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, ये -1 है, 0 तो 0 -1 1, ठीक है, 1 आवर का टाइम यहाँ लगा होगा। इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिफरेंस टाइम का कितना है, T4 और T3 के बीच में ये -2 है, -1 है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 1 आवर आएगा, इनका भी आप डिफरेंस करोगे 1 आवर आएगा। तो आप देखेंगे कि किसी भी दो पॉइंटों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप ओरिजिन को शिफ्ट भी कर देते हो तब भी, जैसे 9 AM को ओरिजिन माना था और C हमारा कोई 10 AM का पॉइंट था, तो इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितने का है, 1 आवर का है। अब मैं थोड़ी देर में क्या करता हूँ, ओरिजिन यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, C को यहाँ ले आऊंगा, तब भी आप देखिए अगर ओरिजिन मेरा 10 AM है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके इसमें 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे -1, इसको अभी इग्नोर कर दो बाकी चीजों को। तो आप देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 1 आवर का ही तो डिफरेंस है टाइम का। तो इसलिए ओरिजिन शिफ्ट होने पर आपके पास क्या है कि जो टाइम इंटरवल है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ लिख सकते हैं द टाइम इंटरवल, और यू कैन राइट हियर टाइम इंटरवल between two location or two position remains constant if the position of two points changes, ठीक है। तो टाइम इंटरवल क्या रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा अगर
उसकी दो पोजीशन आपस में चेंज भी हो रही है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो रिगार्डिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन थे। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो समझ में आ गया टॉपिक? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ आफ्टर द डिस्कशन of important points, here we will talk about the next one, which is scalar and vector. These we have discussed. So here now we will discuss about scalar and vector quantities. So if we write the definition of scalar quantities or scalar physical quantities, so scalar quantities or scalar physical quantities are those which have only मैग्नीट्यूड, मतलब जैसी मैग्नीट्यूड, मतलब आपके पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही नीड होती है। और इन शॉर्ट यू कैन से दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस देम, or to explain them are called scalar physical quantities. Point is clear, student? So these type of quantities are called scalar physical quantity. If you want to write their examples, so examples are distance, speed and work, etc. So this type of quantities for which we can explain them only in magnitude terms, there is no need of direction. So this type of quantities are called scalar quantities, and magnitude only, it means that no need of direction to express them. So जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे कहा कि किसी दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए और बी है, उसके बीच की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर मेरी क्या डिस्टेंस है, इसके लिए कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है कि 10 किलोमीटर नॉर्थ में है, 10 किलोमीटर साउथ में है या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम अगर ए और बी के बीच में डिस्टेंस को बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ए और बी की, वो हमारी फिक्स हो गई कि भाई 10 किलोमीटर है, तो चाहे वो ए से बी की तरफ मेजर हो या बी से ए की तरफ मेजर हो, वो आपके पास कांस्टेंट रहेगी 10 किलोमीटर। तो इसीलिए इस टाइप की जो क्वांटिटीज हैं जिनको हम सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस क्वांटिटी को हम कहेंगे यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज। ऐसे ही स्पीड है, किसी कार की स्पीड हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो उसकी 25 किलोमीटर पर आवर क्या स्पीड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की डायरेक्शन में है या आपके पास किस में है, नॉर्थ में है या ईस्ट में है या साउथ में है या वेस्ट में है, बस 25 किलोमीटर है, तो आपके पास उसको उतने से ही एक्सप्रेस किया जाएगा। तो इसका मतलब जब आप 25 किलोमीटर पर आप लिख रहे हैं, तो इट मींस दैट आप उनकी स्पीड को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर इसके साथ डायरेक्शन ऐड कर देंगे तो इट मींस दैट आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर? सो ऐसे ही वर्क है, वर्क आपको पता है कि हमने कोई एक वर्क किया किसी चीज को उठाने में, और वो सपोज 10 जूल है, ठीक है, तो 10 जूल आपने वर्क किया किसी चीज को उठाने में या किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में बाय अप्लाइंग सम फोर्स, तो आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसमें ये आपके पास मेंशन नहीं है कि जो 10 जूल आपने वर्क किया वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, साउथ में है या अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। क्लियर? तो वर्क आपके पास क्या है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही जस्टिफाई कर सकते हो या डिफाइन कर सकते हो, सेम एज अदर। पॉइंट इज क्लियर? So after that, when we talk about here vector quantities, vector physical quantities, so vector you can write here also physical quantities. So vector physical quantities are those which can be expressed with magnitude as well as the direction. Means those physical quantities, those which have both magnitude and direction called vector physical quantity. Point is clear, student? अब इसके लिए एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूं,
डिस्टेंस का क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज है। अभी हम इसमें डिफरेंस भी हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी है, इसलिए डायरेक्शन होने की वजह से इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वाली कंडीशन आती है। आफ्टर दैट वेलोसिटी, ठीक है, आफ्टर दैट वी कैन राइट टॉर्क हियर। Torque also a vector physical quantity. So these type of physical, suppose यहाँ पे अगर आपको displacement, अभी definition डिस्कस करेंगे अब आने वाले टॉपिक में, what is the meaning of distance and displacement। तो जब यहाँ डिस्कस करेंगे तो अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो मैंने कहा कि अगर मान लीजिए दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट है मेरा 2 मीटर, 2 मीटर। अब आपके पास क्या है, फ्रॉम, अगर दो पॉइंटों के बीच में बात कर रहे हैं, जैसे ए और बी के बीच में बात कर रहे हैं, तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी है, ए टू बी है, या बी टू ई है, बी टू ए है, ठीक है। सो फ्रॉम ए टू बी है या बी टू ए है, ये भी मेंशन होना जरूरी है अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज गिवन डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर पॉजिटिव फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है, इमेजिन करते हैं कि 2 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, तो जब हम उसी 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट को फ्रॉम बी टू ए करेंगे तो उसकी डायरेक्शन ठीक अपोजिट हो जाएगी इसके। तो डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या होगा, इसमें एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इट मींस दैट दिस implies that displacement is a vector quantity because for representing it we need a direction। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में आपको ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी है, अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी लिख रहे हो, आपकी वेलोसिटी देखिए यही सेम लिखा है 25 किलोमीटर पर आवर, और इसके साथ मैंने डायरेक्शन डाल दी नॉर्थ। तो इसका मतलब 25 किलोमीटर पर आवर से कोई कार ट्रेवल कर रही है अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये जो उसकी स्पीड नहीं हुई, अब क्योंकि स्पीड के मैग्नीट्यूड के साथ आपके पास डायरेक्शन आ गई, तो इस वर्ड को यानी 25 किलोमीटर पर आवर को अब हम उसकी वेलोसिटी बोलेंगे, स्पीड नहीं बोलेंगे। क्लियर? बट हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है वो आपका स्पीड होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि टर्म यूज हो रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब हमें एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है। तो सेम ऐसी टॉर्क है, टॉर्क भी अगर हम आपके पास यहाँ पे डिस्कस करते हैं, टॉर्क का अगर आपको फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से पता होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन बोल देते थे। ऐसे ही आपके पास यहाँ पे वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टॉर्क की, आपको टॉर्क पता है कि आपके पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो टॉर्क की अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई टॉर्क लग रहा है, ठीक है, तो टॉर्क लगते समय मान लीजिए उस पे आपके पास 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा है, तो उस 20 न्यूटन मीटर के टॉर्क की डायरेक्शन भी होगी, जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे ना, तो उसका जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो आपके पास बाय वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगी। अगर इसको F कह दें, इसको डिस्प्लेसमेंट कह दें, तो टॉर्क क्या होगा, नॉर्मली होगा F क्रॉस डी के, ठीक है। तो आपके पास वो अबव द प्लेन है और बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये सब आपके पास वेक्टर क्वांटिटी के साथ ही एडअप होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन और उनके एग्जांपल ऐसे समझे जा सकते हैं। Now, after the discussion of scalar and vector quantities, here we will discuss about distance and displacement. So first, I will explain distance. Distance की definition क्या है? आपको ये सारे टॉपिक क्लास 9th में भी पढ़े हैं आपने। टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट? ये सब आपने पढ़ा है, बस यहाँ रिवाइज हो रहा है। टोटल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। तो कोई ऑब्जेक्ट किसी लोकेशन ए से बी पे पहुंचना है, तो जितना टोटल पाथ कवर कर रहा है, जैसे सपोज इमेजिन करते हैं कि आपके पास किसी ऑब्जेक्ट को ए से सी तक पहुंचना है, तो उसके लिए जो टोटल पाथ है वो क्या है, पहले वो ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो आपके पास यहाँ पे
जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुई वो a to b प्लस b to c हुई। तो फॉर एग्जांपल फ्रॉम द गिवन डायग्राम यू कैन से टोटल डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल टू, यू कैन से डिस्टेंस इक्वल टू टोटल पाथ। टोटल पाथ कौन सा है हमारे पास, डायग्राम में देखें ए बी गया है और फिर बी सी गया है टू रीच फ्रॉम ए टू सी। अगर ए टू सी पहुंचना है तो आपको टोटल पाथ कितना कवर किया होगा आपने, ए बी प्लस बी सी, दिस इज योर टोटल पाथ। एंड यू नो दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अभी हमने डिस्कस किया था स्केलर क्वांटिटी। तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा कह देंगे कि ए से सी जाना है तो ए से बी और फिर बी से सी टोटल पाथ ही है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट, यू नो दैट मीटर, एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो सब नॉर्मल सी चीजें। आफ्टर दैट डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट मींस क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between the initial and final position of the object। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्लियर स्टूडेंट। तो जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, ये तो शॉर्ट हुई नहीं है, तो टोटल पाथ कवर है, तो शॉर्टेस्ट इन दोनों रास्तों में से शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है ना। तो आपके पास इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नाउ इफ वी थिंक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है आपका AC हो जाएगा। तो अब डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हेन वी थिंक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट A to point C, that time when we discuss here about from point A to point C, if suppose that time displacement is positive, then when we think about C to A, it will be negative if we think, because that time we are measuring from C to A direction। तो फिलहाल डेफिनेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड दिस इज द सिंबल फॉर वेक्टर which I am using here। So but now the definition only। So after that, it is a scalar or vector, tell me student, it is a vector quantity and its SI unit is same as meter quantity। After the definition of distance and displacement, here I will talk with you about, so for that pause the video and note down। So here distance और displacement को थोड़ा और डीप समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। So from the given diagram, if suppose the distance A to B is 3 centimeter and it is supposed to be 4 centimeter, then to reach the object from A to C, find its distance and displacement। Suppose this type of question we have। So अगर हम ये कहें कि find distance and displacement of an object to reach the point C from A। अगर हम ये डायग्राम के हिसाब से according to figure, so according to figure if we think here about the distance and displacement of the object when it start its motion from the point A to point C, so for that what we will do, from the diagram you can see here by the definition total distance, or you can say total distance, or in short by the diagram distance equal to total path। So see, when the object will move from A to C, then that time the total path will be
from A to B plus B to C, and A to B we have 3 centimeter and it is we have 4, total will be 7 centimeter. And after that when we think here about displacement, so when we talk about displacement, that time it is shortest path between A and B, between A and C. So when we think here about the shortest path, it means that we are talking here about AC. So it will be how we will calculate AC by using PGT, Pythagoras theorem. So we can use AC square, AB square plus BC square. After using this 3 square, 4 square, and you know that it will be 25 and it is square of 5. It is very simple for all. 5 centimeter is the shortest distance between the point A and C, so it will be 5 centimeters. So this is our displacement. Okay, so after that I will discuss here about some points regarding the distance and displacement. After that I will take one more example to explain the distance and displacement. So for that pause the video and note down. सो स्टूडेंट कुछ पॉइंट हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिस्कस करेंगे जो आगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे शॉर्टकट में, ठीक है। पहला पॉइंट ये होगा कि डेफिनेशन क्या है, ठीक है। डेफिनेशन आपको पता है कि टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस, एंड सेकेंड साइड हम जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड आपको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव भी रह सकती है, नेगेटिव भी रह सकती है और जीरो भी रह सकती है। अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक है, कि कैसे जीरो रह सकती है। उसके बाद जब हम तीसरी कंडीशन बात करेंगे कि आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है। बेसिकली डिस्टेंस अभी हमने देखा था कि A से B ऑब्जेक्ट या B से C गया, तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है 7 वो आपका डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर है। बट अगर हमारे पास एक नैरो स्ट्रेट लाइन हो और नैरो स्ट्रेट लाइन के बाद कोई और ऑप्शन ना हो A से B में जाने का, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बट हियर अगर इसी स्टेटमेंट को यहाँ लिखा जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, वो आपके पास क्या होगा, या तो इक्वल होगी डिस्टेंस के या उस डिस्टेंस से लेस होगी, ठीक है। इसका ठीक अपोजिट सेंस हमने कर दिया यहाँ पे। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आगे जस्टिफाई कर सकते हैं, और ऐसे ही कुछ और पॉइंट भी है, ठीक है। आफ्टर दिस इफ आई थिंक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, एक सिंगल पॉइंट बनता है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है और ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे और इसके बेस पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना आने वाला न्यूमेरिकल, ठीक। तो स्टूडेंट लेट्स सी, अब हमें एक सर्कुलर ट्रैक दिया हुआ है, तो इस न्यूमेरिकल के लिए मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आपको थोड़ा सा व्यू करवाया था, डिफरेंस को। बाकी जो इसका फुल डिफरेंस आप अपना पूरा याद करेंगे और उसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मेन पॉइंट ये है, एग्जाम के लिए एटलीस्ट 3 पॉइंट भी आप याद करें तो इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इमेजिन करो। उसके लिए मैंने उसको बाय पार्ट कर दिया उसके सर्कुलर मोशन को, और उसका मोशन A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट से होते हुए जाता है। तो किसी इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का मोशन आपको पता है A पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो किसी पॉइंट C पे पहुंचता है। तो डिफरेंट लोकेशन पर मैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। उस केस में हम ये मान लेते हैं कि सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, या आप इसको ऐसा करिए 14 सेंटीमीटर कंसीडर कर लीजिए, कैलकुलेशन इजी रहेगा, क्लियर।
तो 14 सेंटीमीटर के रेडियल ट्रैक पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सो कैलकुलेट डिस्टेंस एंड displacement from the given diagram अच्छा ओके, कहाँ पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करना है? फॉर पॉइंट ऐसा करते हैं, एक ही में हम सारे डिस्टेंस निकाल देते हैं। फॉर पॉइंट बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ए। सबसे पहले अब हम सॉल्यूशन में आते हैं बी पॉइंट के लिए। फॉर पॉइंट बी पॉइंट पे अगर आप फोकस किया, बी पॉइंट के लिए जब आप डिस्कस करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ए से बी पे गया होगा, ठीक है। जब ए से बी गया होगा तो उसने डिस्टेंस क्या कवर करी होगी? ये सर्कुलर ट्रैक जो आर्क बनाते हुए, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। और मैंने इस सर्किल को 4 क्वाड्रेंट्स में पहले ही डिवाइड कर दिया। तो आपके पास इसमें डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट? सी डिस्टेंस होगा हमारे पास ए बी आर्क लेंथ। और इस ए बी की आर्क लेंथ कैसे निकलेगी? क्लास 10th का फॉर्मूला भी अगर आपको याद है, θ/360 ऑफ 2 पाई आर। अदरवाइज यू कैन यूज हियर 1/4 ऑफ 2 पाई आर, क्योंकि 1/4 है 2 पाई आर का। सो इट विल बी 1/2 ऑफ पाई आर, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें 1/2 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। और रेडियस हमने पहले से ऐसी इमेजिन करी कि कैलकुलेशन इजी रहे, तो हमारे पास 22 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। पॉइंट इज क्लियर? तो 22 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ गया। इसी पे ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें ए टू बी जाने के लिए, तो यहाँ से हम एक लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम अगर आप देखें तो इसको O कंसिडर किया हुआ है, तो O A B के लिए इसकी हाइपोटेनस होगी। ये भी 14, ये भी 14। तो इस केस में आपको पता है पाइथागोरस यूज करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए बी डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू साइड रूट 2। आप करके देख लीजिएगा, यहाँ भी 14 का स्क्वायर, यहाँ भी 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये जो आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेशन आएगा 14√2 सेंटीमीटर का। पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर पॉइंट बी। अब इसके बाद है फॉर पॉइंट सी। जब हम सी पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो उस केस के लिए आप डायग्राम को देखते रहें। डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट ए से सी पे पहुंच गया, तो उसने क्या है? इस पूरे सर्किल का आधा पार्ट कवर कर लिया है, यानी सेमी सर्कुलर पार्ट कवर कर लिया है। तो सेमी सर्किल की लेंथ कैसे निकालेंगे? तो सेमी सर्किल की लेंथ क्या हुआ? 1/2 ऑफ 2 पाई आर। 2 पाई आर इज टोटल circumference of circle, so for semicircle it will be half of 2 pi r, so it will be pi r. Point is clear? So distance कितनी हो गई? pi into r. अब आप इस पे सब्स्टिट्यूशन दे दीजिए, 22/7 into रेडियस कितना था? 14, ये आ गया 2, तो ये हो गया आपका 44 सेंटीमीटर। तो ये आपकी डिस्टेंस है। अब ऐसे ही आपका डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे इस पॉइंट पे। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम फोकस करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस ए से सी पे गया है, तो सीधा शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है, ए टू सी। तो इसका मतलब ए सी विच इज कॉल्ड आवर डायमीटर। और आपको पता है रेडियस अगर 14 है तो डायमीटर कितना हो गया उसका? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी 2r, which is equals to 2 into 14, 28 centimeter. After that, when we talk here about the point D, so for point D, now see student, for point D, अब हम D की बात करेंगे तो D पॉइंट के लिए आपके पास क्या है? देखिए D पॉइंट पे लोकेशन आ गई, ऑब्जेक्ट कितना आगे डिस्टेंस ट्रेवल किया है? ये, यानी किसी क्वाड्रेंट का 3/4, 1 2 3 4 टोटल पार्ट 4 है, तो ये 3/4 ऑफ डिस्टेंस 2 पाई आर की कवर कर चुका है, ठीक है।
तो इसके लिए डिस्टेंस क्या होगा फॉर पॉइंट डी? डिस्टेंस जो है वो आपके 3/4 ऑफ 2πr होगा, ठीक है। तो 3/4 ऑफ 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 14 सॉरी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 2 11 जा 7 2 जा, तो 3 इंटू 22 it is equal to 66 centimeter. This is the distance from the point A to point D in circular track. After this displacement अगर हम फाइंड कर रहे हैं, displacement, see student, displacement बड़ा सिंपल है, आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, और ये डिस्टेंस फिर उतनी ही आएगी जितनी ए से बी की थी, क्योंकि ये भी 14 है, ये भी 14 होगा रेडियस, तो ये आ जाएगा 14√2, जैसे यहाँ पे आया था 14√2। सो डिस्प्लेसमेंट इज आर एडी व्हिच इज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इट इज इक्वल्स टू 14√2 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आया पाइथागोरस थ्योरम तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, एडी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 14 टेकिंग एक्स कॉमन, सो 1 + 1 2, तो ऐसे आ जाएगा 14√2। क्लियर? तो यहां से आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकल गया किसी पॉइंट डी पर। नाउ एट लास्ट फॉर पॉइंट ए, अब देखिए ए पॉइंट पे जब हम डिस्कस करेंगे तो डिस्टेंस कितनी कवर करी है उसने, पूरा एक सर्कुलर ट्रैक उसने बना दिया अपना, पूरी डिस्टेंस सर्कुलर ट्रैक पे उसने पूरी कर दी अपनी यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब 2πr डिस्टेंस कवर कर गया ऑब्जेक्ट, 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर 2 जा, और ये आ गया 88 सेंटीमीटर सॉल्व करके। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी करी ऑब्जेक्ट ने कवर? 88, ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट ने कवर करी, लेट्स सी, बिकॉज फाइनल और इनिशियल पॉइंट, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट both are same, both are same। जब आपके पास फाइनल और इनिशियल पॉइंट यहीं से स्टार्ट करी थी डिस्टेंस और यहीं पहुंच गया, तो अब ये पॉइंट आप कह सकते हो डिस्टेंस है। तो जब दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे, देन डिस्प्लेसमेंट, उन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी? 0, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है? सेम है। देन द डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो इस केस में जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है फॉर द पॉइंट ए, तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है फॉर द पॉइंट ए, वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसलिए जो मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिफरेंस दिखाए थे, उनका मेन पर्पस ये था कि आपको डिस्प्लेसमेंट 0 भी होती है ये पॉइंट पता चले, और ये एग्जांपल आपको इसलिए दिया कि इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो रही है। क्लियर? आई विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है न्यूमेरिकल यूज करने पर। तो अब जो अगली वीडियो है उसमें जो रिमेनिंग टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे।